एक प्यार की कहानी ऐसी भी। जहाँ राजा और रानी बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने ही इश्क में इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि 7 जन्म एक साथ जीने की कसम खा लेते हैं। ये मोहब्बत की दास्तां है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की। ऐश्वर्या की डेब्यू फिल्म और प्यार हो गया के सेट पर अभिषेक उनसे मिले थे। जूनियर बच्चन फिल्म के हीरो बॉबी देओल के खास दोस्त हैं, लिहाजा उनसे मिलने अभिषेक फिल्म के सेट पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ऐश्वर्या से भी हो गई। पहली मीटिंग में दोनों दोस्त तो बन गए, मगर दोनों के बीच नजदीकियां नहीं आईं। उस वक्त ऐश्वर्या जहां सलमान खान को डेट कर रही थी, वहीं अभिषेक करिश्मा कपूर से एंगेज थे। हालांकि कुछ वक्त बाद अभि और ऐश दोनों की लव लाइफ में रफ पैच आया और दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स से अलग हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर पर फोकस करने का डिसीजन लिया। इसके बाद ऐश्वर्या और अभिषेक साथ नजर आए बंटी और बबली के आइटम सॉन्ग कजरारे में। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से दोनों के बीच प्यार शुरू हो चुका था, मगर उनके करीबियों का कहना है कि अभि और ऐश का प्यार शुरू हुआ 2006 की फिल्म उमराव जान के सेट पर। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री माशाअल्लाह थी। उसके बाद दोनों ने बैक टू बैक गुरु और धूम 2 में साथ काम किया, लिहाजा प्यार का ये रिश्ता गहराता चला गया। किसी परफेक्ट फिल्मी कपल की तरह अभिषेक और ऐश्वर्या का इजहार इश्क टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसके बाद मुंबई आते ही दोनों ने फैमिली की मौजूदगी में एंगेजमेंट कर दी। बॉलीवुड की ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट जोड़ी अप्रैल 20, 2007 में शादी के बंधन में बंध गई। Many still do not know how Abhi and Ash met each other. So here's a statement of Abhishek, who remembers the moment jab they met. The first time I met Aishwarya was in August 1997. I was on a recce for my father's film Mrityu Datta in Switzerland, and she was shooting for her first film Aur Pyar Ho Gaya with my dear friend Bobby Deol. I remember one evening Bobby invited me over to his hotel for dinner, and Aishwarya and the rest of the unit were there. That was the first time I actually met her, although I had obviously seen her before since she was Miss World and all that. Abhishek even shared the moment when he knew that Aishwarya is the perfect one for him. He was quoted as saying, "I don't remember if there was any such moment, actually, which is weird, but it always just felt right." If you ask her, she will tell you the same thing, that the minute we came together, we both knew that this was something for keeps. So there wasn't just this one defining moment, it was always felt perfect. Well, their love story is indeed interesting. One of the most innocent star couples. What say? 4 years after their marriage, Aishwarya Rai gave birth to a beautiful baby girl, Aradhya, on 16th November 2011. They are a happy family, undoubtedly. Junior Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan's love saga is still admired by their fans. The story behind their beautiful marriage proposal is equally romantic. Abhishek took to Twitter to let fans know about the moment when he proposed Aishwarya after the Toronto premiere of Guru in New York, and Ash immediately accepted it. Reminiscing about the moment, the actor wrote, "10 years ago on a freezing New York balcony, she said yes." Oh, such a lovely moment it must have been. Well, there are several reports that the love ignited in their hearts while shooting for the very famous number Kajrare in Bunty and Bubbly in 2005. But their film Guru turned out to be the most special film, as he proposed to her in Toronto. Reportedly in an interview, Abhishek reveals the story. "I was filming in New York for a movie, and I used to stand on the balcony of my hotel room and wish that one day, wouldn't it be nice if I were together with her, married?" Years later, we were there for the premiere of Guru. After the premiere, we were back in the hotel, so I took her to the very same balcony and I asked her to marry me. A formal engagement took place in January 2007 at the Bachchan residence. It was in the same month when Guru released. Truly adorable. ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग खुलासे किए हैं, जिसे शायद आपने कहीं भी पढ़ा ना हो। ऐश्वर्या ने फिल्म फेयर मैगजीन को बताया, अभिषेक बच्चन के प्रपोजल के बाद जोधा अकबर फिल्म के सेट पर कैसे रहती थी ऐश्वर्या, और किस तरह से उनके को स्टार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ऐश्वर्या को देखकर रिएक्ट करते थे। ऐश्वर्या ने कहा, "मुझे अभिषेक ने फिल्म गुरु की रिलीज के पहले न्यूयॉर्क के एक होटल में प्रपोज किया था।
इस दौरान उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर अपने दिल की बात बताई थी। मुझे ये सब किसी हॉलीवुड सीन की तरह लग रहा था। जब मैंने अभिषेक को हाँ कर दी तो इसके बाद मैं फिल्म जोधा अकबर के सेट पर ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाने के लिए शूट कर रही थी, तो खुद को सही में दुल्हन की तरह महसूस कर रही थी। उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सब कुछ रियल में हो रहा है, जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मुझे नहीं समझ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। फिल्म सेट पर ऐश्वर्या को यूँ शर्मीले और खुशमिजाज रूप में देख आशुतोष गोवारिकर ने ऐश्वर्या को देखते हुए कहा था। आशुतोष ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने सगाई कर ली है, तो मैंने उन्हें कहा हाँ। उसके बाद जब ये बात ऋतिक को पता चली तो वो काफी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखकर थम्स अप किया, जिसे देखकर मैं खुश थी। वेल, ये सब जानकर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वाकई में रब ने बना दी जोड़ी। इनके लव स्टोरी से जुड़े इस जानकारी को जानकर आपके क्या रिएक्शंस है? कैसे लगती है आपको अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।